Very good morning, children. The topic, you're most welcome in class 11th accountancy. The topic that is going on, depreciation, how the machinery account is maintained, depreciation account is maintained, method of recording depreciation, one of the method you are learning and you have learned. First method by charging to asset account, which has been explained. In this case, the provision for depreciation account is not maintained. Two terms and conditions can be found just recording the depreciation. So therefore, my dear children, you know it very well how the depreciation is recorded by maintaining the asset account and depreciation account, how this one is transferred to the profit and loss account. When second method, by creating provision for depreciation account. First we have to know the meaning of provisions and reserves. Reserves, at the end of the year, some certain amount against the profit is set aside for unknown liabilities. अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए जो हम रिजर्व या संचय करते हैं उसे हम रिजर्व कहा जाता है। प्रॉफिट से अपने थोड़ा थोड़ा अमाउंट। प्रोविजन सर्टेन अमाउंट सेट असाइड अगेंस्ट द प्रॉफिट फॉर नोन liabilities, that is called provision. Provision for depreciation, because of that when the asset become out of use, then a new asset is required. Because of that consistency principle, you know वेरी वेल। बिजनेस जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है बेटा, और इस चीज़ को रिप्लेसमेंट करने के लिए एसेट को एक फंड की ज़रूरत पड़ती है जब वो यूजलेस हो जाती है। तो इसी को प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट कहा जाता है। प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है। इन सच अ केस द डेप्रिसिएशन इज credited to provision for depreciation account instead of asset account। मतलब जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसे क्रेडिट किया जाता है एसेट की जगह पर, जहाँ एसेट अभी हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल के माध्यम से। And hence the asset account always appears in the ledger at its original cost. Remember, the balance of the credit side of provision for depreciation account shows the total amount of depreciation accumulated to date. However, when the asset is sold or discarded, जब भी एसेट्स को, ये कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो
प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है टोटल जब आ जाता है इसका, जब भी एसेट को डिस्पोज करना हुआ या बेचना हुआ, तो उस समय इसे उसमें पूरे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र किया जाता है एसेट। द टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर दैट एसेट इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द एसेट, तब उसे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एंट्री। द जनरल एंट्री विल बी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और accumulated depreciation account debit to asset. This will be the entry. Now see the question number 20 in your book that is given. On July 1st 2005, Puspak Limited purchased a machinery for rupees 5,70,000 and paid for rupees 30,000 for its overhauling and installation. मतलब पुष्पक लिमिटेड एक कंपनी है जो एक मशीन खरीद रही है 5,70,000 रुपये का, और उसको जब अपने वहाँ इंस्टॉल कर रही है बेटा, इंस्टॉलिंग हो रहा है उसका, तो 30,000 रुपये उस पर खर्च कर रही है। तो मशीन की कॉस्ट जो लागत है वो हो जाएगी आपका 5,70,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 6 lakhs. Depreciation is provided at the rate of 20% per annum on original cost method, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। 31st March एवरी ईयर। द मशीन वाज सोल्ड ऑन 31st January 2008 फॉर ए सम ऑफ रुपीज 1,60,000. You are required to show the machinery account and provision for डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years। 3 साल के लिए आपको बनाना है, और हम आपको अब बता रहे हैं ओरिजिनल कास्ट पर बेटा मशीन को क्या करते हैं हम 3 साल का जब बनाएंगे तो उसको ओरिजिनल कास्ट पर दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर यहाँ से देखें कि हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। यहाँ डेट हो गया और ये अमाउंट कॉलम हो गया बेटा। दिस वन इज द जस्ट ड्रॉ द लेटर डेट। just here you can write the machinery account. Date, particulars, amount, date, particulars, amount. This one is the debit and this one is the credit. In question, the date of purchasing given on 1st October 2000 on July 1st 2005 means 1705 to bank
The cost of the machinery is equal to 6 lakhs. 5,70,000 plus 30,000. Just the installation charge, that will be the cost of the machinery. वही होगा. अब जो बुक्स क्लोज होती है आपकी, वो हर साल 31 मार्च को होती है. तो 31/3/2006 बाय बैलेंस. बाय बैलेंस 6 लाख. ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करना है. आपने ऐसे कर दिया, 1 साल का हो गया 6 लाख. मतलब सेम रहेगी वही मशीन. मशीन का वैल्यू हर साल सेम रहेगा. जिस साल हम डिस्पोज करेंगे या मशीन बिकेगी, उस साल उसे डिस्पोज कर दिया जाएगा. फिर नेक्स्ट ईयर 146, नेक्स्ट ईयर 2 बैलेंस BD 6 लाख. आगे ये दूसरा साल भी क्लोज करेंगे 7 बाय बैलेंस. हाउ इजी दिस वन? बाय बैलेंस 6 लाख. Total. In third year, just we have to prepare the machinery account. 1407 2 balance equal to 6 lakh. Just now provision for depreciation account maintained. This one is told just this way. You have to draw the line. Provision for depreciation account. Now see over here. Provision for depreciation account. Top of provision for depreciation account. This one is the debit and this one is the credit. Now see here, date, particulars, amount. Date, particulars, amount. Date, particulars, amount. Now the machinery has been purchased on 1st July 2005 and at the end of the year, just the year ending on 31st March 2006. So depreciation charge करेंगे 6 by depreciation.
बाय डेप्रीसिएशन। बाय डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एट 20% पर एनम मीन्स 6 लाख इंटू 20/100, 6 लाख इंटू 20/100। अब जुलाई से 1 जुलाई से आप डेप्रिसिएशन है तो पहले साल जो डेप्रिसिएशन होगा वो 9 मंथ का होगा बेटा, इंटू 9/12, क्योंकि जुलाई से लेकर मार्च तक आपका 9 महीना कंप्लीट होगा। अब दिस विल जस्ट 0 0 0 0 कैंसिल कर दिया, 3 3 का 9, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 30,000 into 3 equal to 90,000. Just the depreciation for the first year for 9 month equal to 90,000. 90,000. Just the balance 90,000. Here 31st 3 and 6 2 balance, 2 balance CD 90,000। इस साइड में कोई एंट्री है नहीं तो आप क्रेडिट बैलेंस शो करता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलवेज शोज द क्रेडिट बैलेंस, सो 90,000। Now the beginning of the year 1 4 6 by balance। अगला साल जब प्रारंभ होगा बीडी तो ये बैलेंस जो इस साल का है इधर आ जाएगा 90,000। अब फिर आप साल के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, साल के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 31/3/7 बाय डेप्रिसिएशन, फुल ईयर बाय डेप्रिसिएशन फॉर द फुल ईयर, बाय डेप्रिसिएशन फॉर द फुल ईयर। तो फुल ईयर का कितना होगा 20%, 1,20,000, 6 lakh into 20/100 is equal to 1,20,000। Now total 2,10,000। Just balance 31st 3/7, 2 balance। अब बेटा 31/3/2007 को हमारा जो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया पिछले साल का और इस साल का मिला करके 2,10,000। 2,10,000 अब यहां पर 2,10,000। Now in third year we have to enter in third year 1/4/2007, 1/4/2007 by balance। कितना आसान है देखते जाइए बस बीडी। अब हमारे पास कितना आ गया बेटा 2,10,000 रुपए हमारा पूरा बैलेंस है डेप्रिसिएशन इस मशीन में। अब ये कहा जा रहा है कि इसी साल जो है मशीन बिक रही है
31 जनवरी 2008 को, मतलब 3 दिसंबर तक चल रही है, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा इस पर। 31 जनवरी 2008 मीन्स 1/1/8 को 1/1/8 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन इक्वल टू 90,000। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ। लास्ट ईयर भी आपका देखिए अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक 9 महीना हो जाएगा आपका, क्योंकि मार्च असेसमेंट ये है, जनवरी फरवरी मार्च 12 - 3 = 9 मंथ, तो 90,000 ये हो गया। अब डेप्रिसिएशन पूरा हो गया बेटा 3 लाख। 3 लाख। अब ये 3 लाख कहां चला जाएगा? ट्रांसफर करें, क्योंकि मशीन जो है बेची जा रही है, तो डेट कौन सा है? 1/1/8 1 जनवरी 2008 टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी ट्रांसफर हो रही है, मशीनरी बेची जा रही है, मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर किया आपने 3 लाख। ये हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब आइए 3rd ईयर मशीनरी अकाउंट में, जो हमारा हमने अभी एंट्री बताया था कि मशीनरी को क्रेडिट करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो मशीनरी यहां पर क्रेडिट है, कितने में बेची जा रही है मशीन? देखें कितने में बेची जा रही है? 1,60,000 रुपीज। 1,60,000 पहली जनवरी को मशीन बेची जा रही है, तो 1/1/8 बाय बैंक सीधे लिख देंगे 1,60,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कुल कितना इस मशीन का डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 3 लाख रुपए बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3 लाख। अब बेटा ये ध्यान देना है कि हमारे मशीन को बेचने में फायदा हुआ कि घाटा हुआ।